السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو اور پیارے ساتھیوں، کئی دن سے مضمون کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے، تو طبیعت کچھ خراب تھی، ابھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کنٹینیو ویڈیو آئیں گے اور مختلف موضوعات اور ٹاپکس کو کور کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الرائد میں ایک مضمون لکھا جاتا ہے طلباء کو یا عام قارئین کو مخاطب کرتے ہوئے، جس میں موٹیویشنل باتیں، دینی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حاجت تطبیق الاسلام فی الحیاہ، ٹھیک ہے، سینٹنس بریکنگ ٹیکنیک سے سکھائیں گے۔ دیکھیے، حاجت مانے ضرورت، اس کی عربی آتی ہے ضرورت۔ تطبیق اس کو بولتے ہیں، تطبیق کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، لاگو کرنا۔ اس کی ایک عربی آتی ہے نفذہ، کیا آتا ہے؟ نفذ ینفذ تنفیذا۔ اور حیات مانے زندگی۔ تو حاجت تطبیق الاسلام فی الحیاہ، حاجت تطبیق الاسلام فی الحیاہ مطلب زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے یا تطبیق دینے کی ضرورت، ٹھیک ہے، تطبیق یا تنفیذ کرنے کی ضرورت، لاگو کرنے کی ضرورت زندگی میں، اسلام کو لاگو کرنے کی ضرورت زندگی میں۔ اب دیکھیے، ان الدین ایھا الاخ نظام شامل له جہات متعددۃ وجوانب متنوعہ۔ ان الدین مطلب دین، دوست، نظام شامل، جو دین جو ہے ایک ہماگیر نظام کا نام ہے۔ شامل مانے انکلوسیو، اس کو بولتے ہیں اردو میں ہماگیر۔ ادم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو دین جو ہے ایک ہماگیر نظام کا نام ہے، لہو جہات متعددہ و جوانب متنوعہ، جس کے متعدد سمتیں اور متنوع پہلو ہیں، مختلف اور متنوع پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے، اچھی تعبیر، جیسے ان خالد لہو ستۃ ابناء و ثلاث بنات، خالد اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور 6 بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ انسان، اس کی زندگی مختصر ہے، ٹھیک ہے، الانسان لہو حیات قصیرہ، تو اس طرح کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دین اے دوست ایک ہماگیر نظام ہے جس کے متعدد جہات اور متنوع پہلو ہیں۔ وقد ضرب اللہ مثلا رائعا للدین الاسلامی، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے۔ ضرب مانے مارنا ویسے ہوتا ہے، لیکن ضرب مثلا مانے مثال بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار مثال بیان کی ہے اسلامی دین کی، دین اسلام کی، یعنی اسلام کی ایک اچھی مثال بیان کی ہے اللہ نے۔ کب؟ کس میں؟ فی کتابہ المحکم، اپنی محکم کتاب میں۔ وشبہہ بشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور مشابہ قرار دیا ہے، اس کو مشابہ قرار دیا ہے ایک اچھے درخت سے جس کی جڑ ثابت ہے، مطلب اندر پیوست ہے، اور اس کی شاخ آسمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کی مثال کیسے ہے؟ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں، پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے لمبے چوڑے۔ اچھا، وَيُرْشِدُنَا هَذَا الْمَثَلُ الْقُرْآنِي إِلَى فَوَائِدَ عَظِيمَةٍ، اور ہمیں یہ قرآنی مثال رہنمائی کرتی ہے عظیم فائدے کی طرف۔ فائدۃ جمع فوائد۔ ارشد الی ایک عربی آتی ہے، اور ایک وجہ رہنمائی کرنا، اور ایک عربی آتی ہے ہدا یہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تینوں ورڈ لکھ لیجئے ایک ساتھ۔ الفاظ کا ذخیرہ کس طرح ہوں گے؟ کئی الفاظ اور مترادفات کو بھی آپ یاد کر لیجئے، اس طرح آپ کے جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ اس کے ذریعے
मज़मून लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इस तरह होना चाहिए। अब देखिए, और ये कुरानी मिसाल हमारी रहनुमाई करती है अजीम फ़ायदे की तरफ। व यहदीना इला मानिया जलीला, और और हमें रहनुमाई करती है अहम मानों की तरफ, ठीक है। और मिन अहम में है, उन अहम में से क्या है, अव्वलन एक एक करके बता रहा है। इन्नहु दीनुन तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, कहते ये तय्यब दिन है, पाकीज़ा दिन है, वो कबूल नहीं करता मगर पाकीज़ा चीज़ को। वला यरफ़ज़ु इल्ला खबीसन, और वो रफ़ज़ माने मुस्तरिद करना, और वो मुस्तरिद नहीं करता है मगर खबीस चीज़ को। फ़जमीउ शराई व अहकाम तय्यबतुन यक़बलुहल अक़्लुस सलीम, कहते उसके तमाम शरीयत और अहकाम जो है अच्छे हैं जिसे अक़्ल सलीम कबूल करती है। व तस्तसी वह तबीयत साफ़िया, और साफ़ फितरत उसे अपनाते हैं, कबूल करते हैं। इस्तासागासा कहते हैं अच्छा से निकलना, अच्छा लगना। वला यशमाइज़्ज़ु मिनहा इल्ला मन इनहरफ़ अन मुक़्तज़ल फ़ितरत सहीहा, इश्माअज़्ज़ा माने उकताना, इनफ़र्रा भागना, और उससे नहीं भागता है मगर वो शख्स जो कि मुनहरिफ हो गया सही फितरत के तकाज़े से। वज़ाग़ अन सिरातिल हुदा अल वाज़िहा, और वाज़िह हिदायत के रास्ते से वो क्या हो गया, मुनहरिफ हो गया, भटक गया। वही शख्स क्या करेगा, उससे नुफुर इख्तियार करेगा। वज़ल्ल अन तरीक़िल अक़्ल अल मरसूम, और तरीक़ल अक़्ल अल मरसूम, जो कि अक़्ल के तरीक़े से जो भटक गया हो। मरसूम कहते हैं जो मतलब लिखा गया, जो एकदम रास्ते बनाया गया, उसको बोलते हैं रसमा। रसमा माने वैसे ड्रा करना, पिक्चर बनाना, ठीक है। ये मरसूमा दे दिया है, पता नहीं इसमें से तो सब कोई मुज़क्कर है, लेकिन शायद गलती से आ गया। वज़ल्ल अन तरीक़िल अक़्ल मरसूम, और जो है अक़्ल के जो सही रास्ते हैं उससे भटक गया हो। अच्छा, सानियन इन्नहु दीनुन नज़ल फ़ी जज़रिल क़ुलूब व तअस्सल फ़िन नुफ़ूस, ऐसा दीन है वो जो दिल के जड़ों में उतरा। व तअस्सल फ़िन नुफ़ूस, और दिलों में वो पैवस्त हो गया। तअस्सल कहते हैं जड़ पकड़ना, असल से, असल का मतलब होता है जड़। तअस्सल माने जड़ पकड़ना। व बिही उजिनत तीनत बनी आदम, और उसी के ज़रिए से बनी आदम की तीनत या खमीर गूंधी गई है। वाला मिन वालिही नुसिजत, और उसी के तरीक़े पर बुना गया। कौन, इंसान की तीनत फितरत। वाला हुब्बिही फुतिरत तबीअतुहु, और उसी की मोहब्बत पर उसकी फितरत को तैयार की गई। ला यक़दिरु शैउन अन यक़्तिअहु मिन अस्लिही अन युज़ीलहु मिन मअदिनिही, कोई भी चीज़ उसे उखाड़ नहीं सकती है उसकी असल से, जगह से, या उसको हटा नहीं सकती उसके मादिन से, ठीक है। मादिन जो खजाने की जगह ये होती है, खान होती है, उसको बोलते हैं मादिन। मादिन जमा मादिन, सोने चांदी के जो खान होते हैं उसको मादिन बोलते हैं। वइन्नहु दीनुन मुतदफ़्फ़िक़ुन बिलहया ला यतरउ अलैहि ज़ुबूल वला यग़शाहु जुमूद, कहते वो ऐसा दीन है जो तदफ़्फ़क़ माने टपकना कहते हैं, यानी वो ऐसा दिन है जो पुर है ज़िंदगी से। ला यतरउ अलैहि ज़ुबूल, उस पर तारी, तरा माने तारी होना, उस पर तारी नहीं होती है, पजमुर्दगी। वला यग़शाहुल जुमूद, और न उस पर जुमूद तारी होता, ठीक है। ज़ुबूल कहते हैं जैसे फूल मुरझा जाता है, तो उस मुरझा जाने को काम को ज़ुबूल बोलते हैं, यानी पजमुर्दा होना, पजमुर्दगी। गाशे यग़शा माने छाना, माने आना। तो उस पर ऐसा दिन है जिस पर पजमुर्दगी नहीं तारी हो सकती, और उस पर जुमूद छा नहीं सकता। वइन्नहु कश्शजरतिल लती बसक़त फ़ुरूअहा, वो ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें जो है क्या हो गई, लंबी हो गई, बुलंद हुई गई। वतशाबकत अग़सानुहा, और उसके जो टहनियाँ हैं वो गुत्थम गुत्था हो गई। हत्ता बलगत इला अनानी समा, यहाँ तक आसमान की गर्दन तक पहुँच गई। वम्तद्दत, और वो फैली यहाँ तक के ज़िंदगी को क्या कर दिया, ढाँप दिया। बेशुअबिहल मुतरामिया, ठीक है। मुतरामिया माने बढ़ती हुई शाखों के ज़रिए। व जवानिबल मुग़दक़ा,
या मुग़दिक़ा और ढाँपने वाले पहलुओं के ज़रिए। अग़दक़ा का मतलब होता है ढाँपना। सालिसन वमिन अकरम व अफ़ज़ल जवानिब दीन इस्लामी जानिबुन नसीहा लिअम्मतिल मुस्लिमीन। कह रहे कि इस दीन इस्लाम के सबसे अफ़ज़ल, ठीक है, पहलू में से ये है, कौन सा पहलू है? जानिबुन नसीहा, वो नसीहत का पहलू है आम मुसलमानों के लिए, यानी आम मुसलमानों के लिए खैर खाई का पहलू है। ये इस्लाम का एक बेहतरीन गोशा है। हत्ता अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतबराहु वहदहु अद्दीन, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसी को दीन माना है। किसको? खैर खाही को। यानी आप किसी मुसलमानों के लिए भलाई चाहते हैं तो इसी अमल को एक तरह से अल्लाह के रसूल ने दीन बता दिया कि मुकम्मल दीन है। अद्दीन नसीहा, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दीन नसीहा क़ालहा सलासन, 3 बार फरमाया कि दीन खैर खाही के नाम है, खैर खाही के नाम है। मतलब, और ये सही बात भी है, इंसान की इम्तिहान या सही अमल किससे ज़ाहिर होगा? कि वो कितना अच्छा काम करता है दूसरे के लिए, कितना बेटर इंसान बनता है वो दूसरे के लिए। तो यही है। व इन्न नसीहत अय्युहल हक़ लैसत मुजर्रद कलिमात, कहते हैं नसीहत जो है भाई वो सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है। मुजर्रद माने महज, ठीक है, महज भी अरबी होती है, सर्फ भी अरबी होती है, महज के माने। कहते हैं नसीहत ये खैर का सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, बल ये अफ़आल तुअक्किस इल्तिज़ाम मुस्लिम बिक़ियाम इस्लामी फ़ी कुल्लि तआमुलातिह, बल्कि ये अफ़आल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है मुसलमानों के इल्तिज़ाम को इस्लामी अक़दार के साथ उसके मुआमलात में। फ़ी कुल्लि तआमुलातिह, तामुल माने मुआमलात। व इन्नमा हिय सुलूकुन इजाबियुन यम्तलिउ हुब्बन व इखलासन, बल्कि एक मुस्बत रविश है, रवैया है जो कि भरा हुआ होता है मोहब्बत और इखलास से। फ़ाइज़ा तशक्कलत नसीहत फ़ी क़ालिबिल मर्इ, जब नसीहत या खैर खाही जब ढाल जाए किसी किसमें? फ़ी क़ालिबिल मर्इ, कि फ़ी क़ालिबिल मर्इ, इंसान के क़ालब में, जाअत बिल खैरातिल अमीमा, तो बहुत ज़्यादा भलाई लाती है। ठीक है, अमीमा माने कसीरा, गज़ीरा। अमीमा बहुत अच्छा वर्ड है। अमीम, कसीर, गज़ीर, मतरन गज़ीरा। ये वइज़ा तजस्सदत फ़ी तआमुलात लअहदस इन्क़िलाबन फ़िल हयात वल कौन, और जब वो मुजस्सम बनता है तामुलात में तो वो इनकलाब बर्पा करता है ज़िंदगी में और दुनिया में। व नसुक़ फ़ीमा यली क़िस्सत जरीर इब्न अब्दुल्लाह, कहते हम मंतज़ झैल में जरीर इब्न अब्दुल्लाह का क़िस्सा बयान करते हैं। अल्लज़ी काना मिन अस्सहाबतिल मारूफ़ीन बिन्नुस्ह वल अख़लाक़, जो कि उन सहाबा में से थे जो कि मारूफ़ थे खैर खाई और इखलास में। व इन्नहु इल्तज़म बिमा अमरा बिही हबीबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने इल्तिज़ाम किया जो कुछ उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। मिन नुस्ह, खैर खाई में से, लिकुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमानों के लिए, तो हयाती ज़िंदगी भर। यक़ुलुन नववी वहुव यसरदुल क़िस्सा, ये छोटा सा किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है मुसलमानों के लिए सबक। तो नववी क़िस्सा को बयान करते हुए कहते हैं कि इश्तरा जरीर फ़रसन मिन रजुलिन, कि जरीर ने एक घोड़ा खरीदा एक आदमी से, ठीक। फ़सअलल बाइउ अन समनिही, तो बाए ने उसकी कीमत के, यानी ख़रीदने वाले ने उसकी कीमत के बारे में पूछा। फ़क़ाल रजुल, तो आदमी ने कहा कि सलासुमियत दिरहम, 300 दिरहम, यानी घोड़े की कीमत कितनी है? 300। फ़क़बिल जरीर, तो जब ने उसे कबूल कर लिया। लाकिन्नहु इंदमा नज़रा इलल फ़रस, लेकिन जब उन्होंने घोड़े को देखा और जवदती कीमत है, और उसकी क्वालिटी, जवदत उन कहते हैं उम्दापन को, उसकी क्वालिटी और उसकी कद्र कीमत को देखा। क़ाला लिल बाय, तो बाय से कहा, बाय कहते खरीदने वाले बेचने वाले दोनों को, तो बाय से कहा कि फ़रासो का यस्तहिक़ अक्सर मिन ज़ालिक, तुम्हारा घोड़ा तो इससे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। अतर्ज़ा बे अरबाई मियत दिरहम, क्या तुम 400 दिरहम से राज़ी हो? फ़वाफ़क़ल बाय, तो बेचने वाले ने मुआफ़क़त कर ली कि ठीक है चलो 400 दिरहम दीजिए। सुम्मा क़ाला जरीर, जरीर ने कहा कि बल हुवा खैर मिन ज़ालिक, बल्कि इससे भी अच्छा है। ऐसा नहीं है, आइए कुछ खाते हैं। अतर्ज़बे खम्समियत दिरहमिन, क्या 500 दिरहम पे राज़ी हो? वस्तमर जरीर यज़ीदु फ़िस्समन,
जरीर बढ़ाता रहा कीमत में, यहाँ तक कि पहुँच गया 800 दिरहम। वह शेरुल्लज़ी रआ जरीर अन्नहु कीमतुल आदिला लिल फरस, और वो इसी कीमत है जिसको जरीर ने समझा कि ये मुनसिफाना कीमत है घोड़े की। फसअलहु साइल अन सबब ज़ियादती फिल मबलग, तो साइल ने बढ़ाने की उस वजह के बारे में पूछा कीमत में, जो कीमत में क्यों ने आपने इजाफा किया। फरद्द अलैहि क़ाइलन, तो उसने जवाब दिया, रद्द अलमन जवाब दिया कहते हुए, इन्नमा दफ़अनी अलैहि, मुझे उस तरफ ये किया, क्या कहते हैं, इन्नमा दफ़अनी अलैहि, यानी मुझ पर उसको आमा दिया कि उस चीज़ पर, कौन, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। या कहते इन्नमा दफ़अनी, मुझे दिफा किया या आमादा किया उस चीज़ पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अन्नुस्खु लिकुल्लि मुस्लिम, इस्तवहैना मिन खिलाल हाज़िल क़िस्सति राया अमरैन, कहते हम इस्तवहा माने लेना, हम इस अच्छे किसके ज़रिए से दो अम्र ले सकते हैं। यहताजु इलैहिमुल मुज्तमल मुस्लिम फ़ी कुल्लि तौरिन मिन अतवारिह, जिसकी तरफ ज़रूरत पड़ते हैं हर मुसलमान हर हालत में, ठीक है। नज़कुरु फ़ीमा यली, नंबर 1 अन्नुस्ह वल अमाना, नसीहत और अमानत। जरीर काना मिसालन हय्यन लिन्नुस्ह, जरीर जो है जिंदा मिसाल थे खैर खाई के। फलम यस्तगिल्ल जहलल बाई बिक़ीमतिल फरसिल हक़ीक़ा, तो इस्तगल्ला का मतलब होता है इस्तेहसाल करना, फ़ायदा उठाना, गलत फ़ायदा उठाना एक्चुअली। तो उन्होंने आदमी की जो नाशनासी है घोड़े की कीमत के बारे में, उससे फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। घोड़े की हकीकी कीमत के बारे में आदमी की जो नादानी है, नासमझी है, जहालत है, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। बल आता हो हक़्क़हु कामिलन, बल्कि उसको पूरा पूरा हक़ दिया। तत्बीक़ुल अमल नसीहा, नसीहत का प्रैक्टिकल नफाज। अलक़िस्सा तो तुज़हिर इल्तिज़ाम जरीर बेमबदा नसीहा, किस्सा ज़ाहिर करता है जरीर के इल्तिज़ाम करने को, नसीहत के उसूल को। अल्लज़ी तअल्लमहु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन्होंने सीखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हैसु लम यक़्तसिर अलल वाज़, सिर्फ वाज़ पर इक़्तिबास नहीं के, बल आशा क़ियामुल इस्लाम फ़ी हयातिही, बल्कि उन्होंने जिया इस्लामी अक़दार को जिया अपनी ज़िंदगी में, यानी प्रैक्टिकल लाइफ जिया। फ़नहनु अय्युहल हक़ फ़ी अशद्द हाजतिन इला मारिफ़तिल मबादिल इस्लामिया, तो ऐ दोस्त हम ज़रूरत है, ठीक है, क्या कि हमें इस्लामी उसूल और मबादी पहचानने की ज़रूरत है। सुम्मा तत्बीक़ुल अमली लितिल्कल मानी अस्सामिया, फिर उस बुलंद मानी के लिए अमली तत्बीक़ की ज़रूरत है। इज़िल मारिफ़त वहदहा ला तुस्मिर वला ताती बिखैर, इसलिए कि सिर्फ इल्म, मारिफ़ा माने सिर्फ इल्म, वो ना फ़ायदा देता है, फल देता है, ना कोई अच्छा खैर लाता है। हत्ता लाता हत्ता हक़्क़क़ फ़ी हक़्क़िल हया, यहाँ तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए हक़ ज़िंदगी की हकीकत में। लिज़ालिक अमरा सुब्हानहु व तआला, इसी लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हुक्म दिया है इस्लाम को अमली तौर पर तत्बीक़ देने की। जिस वक्त उन्होंने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो क्यों तुम कहते हो बात जो करते नहीं हो। कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी नाराज़गी की बात है कि तुम वो कहो जो नहीं करते हो, ठीक है। कबूरा ये फ़ेल है, अन तक़ूलू ये फ़ाइल उसका है, ठीक है। मक़्तन ये तमीज़ है। चलिए आज के लिए इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। मअस्सलामा।